पुकारता चला हूँ मैं. Hello, good evening, namaste, sat sri akal, because we are calling from Canada. So, तो sat sri akal बनता है. So today we have another Lalamite on board from Canada. He's from 1989 batch, which is kind of reverse of our batch 98. We are very pleased to welcome Dr. Sanjay Dixit. डॉक्टर संजय दीक्षित, आपका अभिनंदन है हमारे ई ब्लास्ट के फोरम पे. एंड डॉक्टर संजय दीक्षित नॉन फिजिशियन इन बर्लिंगटन, Ontario, and he's working as a rheumatologist and having his own practice on osteoporosis based clinic. So सर, आपका वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत आपका. एक छोटी सी चीज मैं भी जोड़ देता हूँ बॉस की. बॉस जो है असिस्टेंट क्लिनिकल प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में, डिवीजन ऑफ रूमेटोलॉजी, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी. बॉस, वेलकम टू ई ब्लास्ट फोरम. Again, thank you very much, Nitin and Meenakshi. Thank you very much for inviting me today. I would say it's my privilege to be here, and 98 batch has started something that's very unique and new. That is to unite all LRMites. No one has done this before, and kudos to you guys and for taking this initiative. Thank you very much. All of you should be very proud. थैंक यू सो मच बॉस. और मीनाक्षी, मेरे ख्याल हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं. पहला सवाल आप से शुरू करते हैं. तो पहला सवाल. बिल्कुल. सो आप अब तक की जर्नी बताइए. लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? When did you get into LLRM? How was the journey there? And उसके बाद क्या किया? कहाँ कैसे यहाँ तक पहुँचे? So my father was an engineer in Ministry of Defense in Muradnagar, Ghaziabad. That's where I grew up. Went to school KVUFM there. I have a very good friend circle from my high school. Got selected through All India exam in Bihar, which I didn't like. Then by the grace of God, gone into UP. शुरुआत हुई आगरा से, आगरा से मेडिकल कॉलेज 6 महीने बिताए. Then I got transferred to Meerut, and that I would say is the best time of my life. I have sweet and great memories. I did my MBBS there. Then for MS, I did MS in general surgery. Went back to Agra, did 3 years. Then I did an SR shift in Batra Hospital, and then came to Canada. Started in colorectal cancer here. Got into general surgery. यहाँ पे जो है they did not recognize my PG from India, so had to do retrain. Well, कोई नहीं, it's a small price to pay. So started general surgery. I didn't like it. Went into ortho. Did 3 years of ortho, and then my wife made me switch to internal medicine to do rheumatology because I never got to see her. She's a cardiologist, and in internal medicine, when we were both training, I never could see her. So I think all will listen to the woman in your life. Nitin, this is for you. So this is the best decision. That was the best decision of my life, I would say. And then so I did my rheumatology, and now here I am. I actually almost forgot. So जब मैंने PG का एग्जाम दिया था इंडिया में, तो रिजल्ट आने के बाद और ज्वाइनिंग के बीच में कुछ पंगा था. तो 6 महीने जो है we all had to wait for a few months. So शुरू नहीं हुआ था. तो through All India, I also got into through All India. पर मेरी रैंक बड़ी अच्छी नहीं आई थी, तो मुझे दूर मिल रहे थे, and I didn't want to go anywhere. So I joined Lady Harding in SPM. Okay. 6 महीने मस्ती, क्या बहुत बात. मस्ती मारी. वो 6 महीने बहुत मस्ती मारी. SPM की मैंने करना क्या था कुछ पता था मुझे. यहाँ पे मैं टिकने वाला नहीं हूँ. It's a very, very good time. But this is today. It's all of, if I take into account all the training, all my life, the LLRM is still the unbeatable best time of my life. क्या बात है बस. वेरी स्वीट
जर्नी टिल नाउ। चलिए बॉस, थोड़े से और शुरू के यादों को जो है ताज़ा करते हैं हम लोग। चलते हैं कॉलेज में रैगिंग टाइम के पीरियड में। तो बॉस, कुछ रैगिंग टाइम के कोई किस्से अगर आपको याद आते हो तो वो शेयर कीजिए हम लोगों से। अरे यार बहुत किस्से हैं, कितनी बार मुर्गा बने, कोई भी एक भी बोलता था अबे मुर्गा बन जा। ये चाहे बैच का हो या बाहर का हो, कुछ पता नहीं कि किसने चिल्लाया, कौन चिल्लाया, मुर्गा बन जा, सब मुर्गा बन जाते थे। और जो वो है कौन मार रहा है लात घुसे, कुछ पता नहीं है। तो ये हम तो सोचते कि सीनियर होगा, ये भी हो सकता है कि बाजू वाला जो है ना पीछे वाले रो वाला 2-4 लगा गया साथ में। पर ये है कि जितनी रैगिंग होती थी उतना ही जो सीनियर ना, ये देखो रैगिंग जो है कई दफा तो एक्सट्रीम हो जाती है। हमारे टाइम पे होती थी, आई वुडंट कॉल इट एन एक्सट्रीम रैगिंग, मार पिटाई होती थी, पर वो जो सीनियर हैं वो इतना ध्यान रखते थे बाद में। जब प्रोफेशनल एग्जाम होते थे तो वो जो सीनियर हैं वो उन्हें एक बार कहना होता था कि बॉस अब मुझे जो है 4 बजे जगा देना। तो वो बॉस बेचारे 4 बजे तक सोएंगे नहीं, आके जगाएंगे, चाय बना के देंगे। अभी डिपेंड करता है कौन से बॉस को पता है। कुछ ऐसे बॉस भी होते थे, उनसे अगर कहती है 4 बजे उठना है, वो आके उठाएंगे। अगर तुम नहीं उठे तो जो है ना वो बाल्टी सिर के ऊपर पानी करके तुम्हारे ऊपर जगा के मानेंगे। पर वो प्यार जो है ना, वो सीने जूने वाला प्यार, वो मेरे ख्याल से रैगिंग के, क्योंकि पिटाई तुम किसी को मारोगे तो फिर बुरा भी लगता है, यार तेरी पिटाई कर दी। रैगिंग होती थी, मजा ये था रैगिंग का, रैगिंग होती थी उसके बाद जो है सीनियर बड़ा खिलाते पिलाते बड़ा अच्छा रहे। हाँ नहीं बॉस, ये तो सही बात है कि बॉन्डिंग जो है बड़ी जबरदस्त बनी है, मतलब अभी तक जो है बनी हुई है उस रैगिंग की वजह से। वो तो है। एक बॉस थे आगे, मैं अभी जो किस्से सुनाऊंगा मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, जूनियर सीनियर और हमारे बैच के, तो नेमिंग नहीं शुड नॉट बी देयर, बट एक बॉस ने मुझे मारा, उन्हें बड़ा बुरा लगा, मुझे लेके गए, बड़ा अच्छा खिलाया, कह रहा तुझे किस चीज की जरूरत है, क्या चाहिए। मैंने अभी तो कुछ नहीं, पर बाद में बताऊंगा। फिर वो जो है वो उन्होंने जितने भी, वो फर्स्ट प्रोफ में था मैं, तो वो जो है फर्स्ट प्रोफ में सेकंड प्रोफ में आया, तो उन्होंने जो है वो उन्होंने बुलाया, उन्हें याद रहा, उन्होंने बुलाया मुझे, कह रहे ये सुन, तू जो अपनी किताब नहीं खरीदना कुछ भी, ये मेरे पास सारी हैं, सारी की सारी ले जा। मैंने वो सारी, हाँ कहते सब ले जा, तो सब ले जाओ। मैं he gave me everything, all the supplies and everything। तो वो जो अभी भी मैं still in touch, and those memories, those unbeatable, you cannot these, I don't know अभी कैसा माहौल है, रैगिंग का क्या है, क्या हाल हाँ अब बस रैगिंग होती है, बट वो वैसी वाली रैगिंग जो है अब नहीं होती, क्योंकि काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए ना, तो अभी हाँ प्लस एंड माइनस अभी ज्यादा भी होते थे। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा मारो पीटो तो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग टू, राइट। सो अगर नहीं आप ले पा रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग टू डिप्रेशन, कैन टर्न द अदर वे टू। एग्जैक्टली। चलिए बॉस, टेंडर एज इन इंडिया, very tender age, we enter like just after grade 12, so उस टाइम में not everybody is so mentally prepared to get all that for exactly। सही बात। चलिए मीनाक्षी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। या सर, आपने बताया कि आप गाजियाबाद से थे, तो आप भी उनमें से रहे होंगे जो सैटरडे संडे में घर भाग जाते हैं, बट हॉस्टल की कोई बात बताइए, कोई फ्रेंड्स के साथ मिलके कोई मजेदार किस्सा कुछ ऐसा किया हो शैतानी का? अरे मीनाक्षी, मैं था ज्यादा दूर नहीं था, पर मैं घर नहीं जाता था। वो घर इसलिए नहीं जाता था कि सैटरडे संडे में तो बहुत मस्ती होती थी हॉस्टल में। वो मस्ती, मैं उस टाइम पे तो मैं अल्कोहल वगैरह कुछ नहीं पीता था, अभी भी ज्यादा नहीं पीता, पर अब उस टाइम पे मजा आता था। मेरे जो कई सारे हॉस्टल वाले जो बैच लोग थे, ये रात को बैठते थे और जो है वो तो कई दफा तो करते थे कि बाल्टी लिए और उसमें डाला सब सामान और मग्गों के साथ पीते थे। हम मुफ्त खोर थे, हम जाते थे उनके नमकीन वो सब खाने के लिए। तो पर मजा ये आता था कि उस टाइम पे इतनी बढ़िया इंग्लिश सुनने को मिलती थी। ये पीने के बाद जो उनके जो देसी स्कूल में पढ़े हुए और हिंदी में ही बात करते थे, वो इंग्लिश बोलते थे, वो तो बहुत ही मजा आता था। और जो है जो कुछ दोस्त थे मोदी नगर के थे, मेरे दोस्त हॉस्टल वाले,
वो वीकेंड पे जाते थे और वो वीकेंड वापस आके जो है बड़ा घरों से अपना इतना बढ़िया बढ़िया माल लाते थे और पूरे हफ्ते का लाते थे। और मेरे जैसे 2-4 और थे जो वो पूरे हफ्ते का सामान 2 दिन में निपटा देते थे। गालियाँ भी खाते थे उनसे कई बार। और जो है पर अगर हम नहीं आते थे वो बुलाने आते कि क्या बात है, नाराज है तो आया कैसे नहीं। ये ना वो पुरानी बात है, ये प्यार इतना जो है आपस में था। बिल्कुल बॉस, कोई किस्सा याद आता हो तो बताइए हॉस्टल लाइफ का। अरे बहुत सारे। चंदू के साथ टंकी पे बैठ के एक बार हमने टंकी याद है नितिन तुम्हें? चंदू बॉस ने टंकी का किस्सा बताया है अपने अरे यार ऊपर कैसे चढ़े वो तो आप अभी सोचते हैं कि कितने पागल थे हम लोग। पर वो जो है चढ़े धीरे धीरे रेंगते हुए ऊपर तक गए और जो है वो थम्स अप जो भी थी वो अपना कोला वहां पे बैठ के पिए कि उस टाइम पे तक किंग थे कि हम तो वी आर द किंग, यू नो, कोई अनबीटेबल अनटचेबल, इतना जोश था। और जो है हाथ छोड़ के अपना वो चलाते थे हम, बाइक मोटर बाइक और स्कूटर चलाते थे। स्कूटर तो मेरे पास थे, स्कूटर पे हाथ छोड़ के अपना चलाते थे। एक बार जो है गिरा ऐसा 20 मीटर तक मेरे स्कूटर ने मुझे घसीटा। फिर मुझे अकल आई कि ना अभी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। यस आपके रूममेट कौन थे? मेरा रूममेट वाज अ जैम, अजय चौहान। उसका जब मैंने ज्वाइन किया हॉस्टल में शुरू में तो कोई जाता नहीं था। जो लेट सभी लोग लेट जाते थे और मैं तो सबसे बाद में गया था। और मुझे रूम मिला चौहान के साथ इसलिए रूम मिला कि वो जो है बंदा ऐसा था, उसकी सीनियर से सबसे सांठगांठ थी। अच्छा। 85 बैच में उसके फ्रेंड्स थे। और वो सबको जानता था तो उसे तो कोई छूता भी नहीं था। तो वो अकेला रहता था। एनजेबी में जो है शेयरिंग होती थी। तो जब मैं आया तो वही रूम बचा हुआ था, तो मुझे पता नहीं था। मैं तो चलो, पर इट टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट थिंग। वो चौहान की वजह से जो है अभी मुझे थोड़ा प्रोटेक्शन मिला रैगिंग में और सीनियर से जान पहचान हुई। पर उसकी वजह से एक बार जो है गड़बड़ भी हुई, क्योंकि जो जिन्हें वो जानता था वो बॉस जो थे वो पहलवान टाइप के थे। उनकी खुराक भी अच्छी थी। तो एनजी में होता है ना, एनजीबी में अपनी मैस होती है जो है। हम उस टाइम पे तो हम लोग इकट्ठे होके ग्रुप बनाते थे और जो है ग्रुप अपना मैस चलाते थे, अपना कुक और मैस बॉय, और जो शेयर करते थे फिर एक्सपेंसेस कि जो भी खाना हो। तो मैं और चौहान, वो जो उनके सीनियर थे, वो कहते चौहान के पास आए कि यार तू हमारे साथ आ जा, ज्वाइन कर, विल मेक अ ग्रुप। ठीक है। तो मैं और चौहान दोनों ने ज्वाइन कर लिया। 1 महीना टिके हम, क्योंकि जो है वो खाते थे ऐसे नाप के रोटियां कि मैस बॉय बनाता था कि हाँ इतनी सारी रोटी बना के रख दे। और उनकी खुराक, वो बड़े एथलेटिक थे, वो वेल बिल्ट। ओके। 1 महीने बाद निकल गए। क्या यार, ये तो हम तो चौहान कहता है यार ये तो हमारा तो वाला निकल जाएगा यहाँ। चौहान वेरी, अभी सर्जन है, वो इंडिया में ही है। सर्जन, एक्सीलेंट। ओके बॉस, चलिए बॉस, हम लोग चलते हैं कॉलेज की क्लिनिक की तरफ। कॉलेज की इवनिंग क्लिनिक्स जो है हम सब के लिए बड़ी मजेदार रही हैं। क्लिनिक के बाद का टाइम, पहले का टाइम, क्लिनिक का टाइम, तो कोई उससे जुड़ा हुआ कोई किस्सा अगर आपको याद आता है तो शेयर कीजिए। तो इवनिंग का ये मेरे ख्याल से मॉर्निंग की बात है। इवनिंग में तो सारे पीजी पढ़ाते थे। मॉर्निंग में यूजुअली इट यूज्ड टू बी आइदर पीजी और वन ऑफ द प्रोफेसर्स। तो मेडिसिन का था, मेडिसिन वार्ड में थे। तो वो बता रहे थे, मैं केस अपने जो प्रोफेसर थे हमारे, वो बता रहे थे केस, सब सुन रहे, हिस्ट्री ले रहे, ये वो है। तो फिर साइड में एक हमारी क्लास का दूसरा बैच था, क्लिनिकल बैच। तो वो बंदा जो है वो एग्जामिनेशन कर रहा था एक पेशेंट पे, परकशन कर रहा था, वेरी गुड परकशन, लाउड एंड क्लियर।
तो जो हमारे प्रोफेसर थे उन्होंने रोका सबको, कहते हाँ भाई बजा 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 और तेज, तो और तेज करा, कह रहा और तेज, और तक कह रहा छाती फोड़े थे तू इसकी। It was so loud. It was so loud. I mean, the guy, you know, he was doing a good job. He thought he was doing a very good job, but he was too hard when he was percussing the chest. So, और क्लास इतनी हंसी, उसका बहुत दिन तक मजाक बना। तो उसका जो है, आगे नाम नहीं लूंगा, मेरा बैच में हमारी क्लास में था, ऐसे ही नाम है उसका भी, और बहुत मजा बनाया उससे बहुत देर तक। और ऐसे भी हैं लोग थे जो वुंड देख के जो है यू नो नीचे गिर गए, वो आज की केस में फेमस हो चुके। क्या सर बात कुछ है। नाम यहाँ पे फिया या इसकी कोई सेंसर बोर्ड नहीं लगा हुआ है, एक दो नाम आप लीजिए। नहीं यार, नहीं, अरे नहीं यार, ना मनवाओगे तो मेरे अच्छे रिश्ते हैं उनसे। चल मीनाक्षी नेक्स्ट क्वेश्चन। बाद में बता दूंगा, तुम दोनों को बता दूंगा, पर यार नहीं भाई, ये मारेंगे मुझे पकड़ के। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्लिनिक में किसी टीचर के साथ आपका कोई बढ़िया सा किस्सा, लाइक वाइवा के टाइम या कुछ फनी आंसर कभी हम लोग कर देते हैं, या किसी से कोई इंटरेक्शन? मेरा तो मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं रही कि कोई मजेदार किस्सा रहा हो टीचर के साथ। मैं ये देखो, उस टाइम पर ये होता कि निकल जाओ, फ्लाई अंडर द रेडार, ऊपर भी मत जाओ जिससे कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहो, नीचे भी मत रहो कि वो जो कि तो ये ना बेकार है, तो बीच में रहते थे हम। पर बेस्ट वही था, मेरी फिलॉसफी ये थी कि अपना जो है बेस्ट। पर एक किस्सा सुनाता हूँ। SPM की क्लास चल रही थी, और जो है जो सर थे वो लंबे चौड़े से, क्या नाम था यार उनका, नाम भी याद नहीं आ रहा, बुढ़ापा अपना कुछ चल रहा था, वो उनकी बड़ा हल्ला होता था उनकी क्लास में। तो उन्होंने एक सवाल पूछा, और एक जो हमारी क्लास में बड़े अच्छे तेज बच्चे थे, जो उनमें से जो है लड़की ने एक आंसर दिया उसका, इधर से जो है साइड में हमारा जो है बैचमेट बैठे हुए थे, तो वो किसी और बात पे हंस पड़े। अबे उनके आपस में चल रही थी, सर ने सोचा कि ये जो है इसके ऊपर हंसा, या उस पे उसने क्वेश्चन पूछा, इसने जवाब दिया, उस पे हंसा, खड़ा किया। कहते हैं बड़ा हंस रहा है, सर नहीं तो। कहता है ये बताओ, आर यू लाफिंग ऑन हरसेल्फ और योरसेल्फ? वो कहता है सर योरसेल्फ। बात हो जाता। कुछ और याद आए तो बहुत शेयर कीजिए। यानी ENT का एग्जाम था, और उसमें जो है क्वेश्चन था NHL पे, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। तो डेमोन्स्ट्रेटर होते थे उस टाइम पे, एग्जाम कंडक्ट कराते थे वो। उसने पूछा, बॉस डेमोन्स्ट्रेट चल रहे थे, सर मुझे तो ये पता ही नहीं क्या है NIHL, बता दो कुछ। तो उन्होंने धीरे से विस्पर करा, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। बंदे ने सुना नॉइज इंड्यूस्ड हेयर लॉस। अगले ने इतना लंबा चौड़ा आंसर लिखा नॉइज इंड्यूस्ड हेयर लॉस पे। सर जब आगे बताता है कि मैंने इतना बढ़िया नोट मारा नॉइज इंड्यूस्ड हेयर लॉस पे, मुझे तो पता ही नहीं था नॉइज इंड्यूस्ड हेयर लॉस भी होता है। जो हमारे बैच में एक बंदा था, वो जो है ए से नाम था उसका, वो था कॉपी मास्टर। चीटिंग होती है ना, चीटिंग करते हैं लोग, पर्ची। वो उसके पास अगर तुम्हें पर्ची, अगर एग्जाम है तुमने तैयारी नहीं की है तो घबराने की बात नहीं है, उसके पास जाओ और वो 2-2 रुपए में तुम्हें पर्ची बेचेगा। उसने हर चीज की पर्ची बनाई थी, हर चीज की पर्ची बनाई थी। गया वो गलती क्या करी उसने मास्टर पर्ची थी वो भूल गया कमरे में। कि कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या छुपाया हुआ है। बढ़िया। चलिए बस अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग जैसे कॉलेज से निकले हुए इतने साल हो गए, हमारी जो है सिल्वर जुबली है,
आप तो जो है काफी पहले निकल चुके थे कॉलेज से, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कॉलेज में कुछ लोग ऐसे आप जो है कुछ नाम लें जिनसे आपको लगता है यार मैं अगर इन लोगों से मिल पाता तो कितना मजा आता, मतलब आप चाहते हैं, मतलब यू आर डेस्परेट टू मीट देम बट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस यू आर नॉट एबल टू मीट देम। बहुत सारे लोग हैं। सीनियर बैच में हैं प्रमोद गुप्ता बॉस, जैम जैम प्योर गोल्ड, हार्ट इज प्योर गोल्ड। 87 बैच में थे जयंत शर्मा बॉस। जयंत शर्मा बॉस, यस। अरे यार उनका ग्रुप ही बड़ा बड़े हैंडसम एंड यू नो, उनका वो थे अब्बास बोस थे, उनका जो ग्रुप जो था वो अलग ही था, अलग बिल्कुल अलग ही उनकी स्टाइल थी। अगर मुझे किसी पूरे LLRM सीनियर जूनियर या स्टाफ किसी से मिलना, अगर तुम कहो ना कि यार तुम एक बंदे से मिल सकते हो तो सिंधु गोयल मैडम हुआ करती थी। हाँ बॉस, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझे मन है किसी से मिलने का तो उन्हीं से मिलने का मन है। इतना सपोर्ट किया उन्होंने, सबको ही सपोर्ट करती थी, और उनकी ऐसी हैबिट थी कि यू नो उनसे तो कभी भी चल जाके बात कर लो तुम, वो शी विल ऑलवेज कंफर्ट यू, वो क्या हाँ कोई बात नहीं मैं कर लूंगी, तू चिंता मत कर। आई थिंक दैट्स द ओनली पर्सन आई से आई वांट टू मीट। क्या बात है बॉस। मीनाक्षी, अगला सवाल ले लेते हैं। या सर, आपके टाइम में भी डल्लू की दुकान ही पॉपुलर थी? डल्लू की, या डल्लू की पॉपुलर थी, पर पता है मीनाक्षी, डल्लू से ज्यादा हमने चाय पी, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है अभी, पर गेट से निकलते ही लेफ्ट में उसके कॉर्नर पे होती थी चाय की दुकान। तो कोई किस्सा डल्लू की दुकान का, कोई किस्सा? हाँ तो एक बार जो है हमारे जूनियर बैच में होता था एक लड़का, हॉस्टल में रहता था, तो एक बार हम गए बाहर, तो वहाँ पे वो बैठा हुआ था, और वो बैठा हुआ था 85 बैच के एक बॉस थे, वो रैगिंग कर रहे थे, और जो है उनके साथ कोई और भी था, वो नॉन मेडिकल था, फार्मेसिस्ट था, वो फार्मेसी ओन करता था, कॉलेज के बिल्कुल सामने उसकी फार्मेसी थी। तो मैं बॉस को जानता था उन्हें, तो जब तक हम पहुंचे वो तक तैयारी उसकी रैगिंग हो हा के, वो फाइनल फेज ऑफ रैगिंग था उसका, उसमें उन्होंने अंडे ऑमलेट बनाया, बहुत सारी हरी मिर्चें डला रखी थी उसमें, उसे खिला रहे थे कि खाए, मारेंगे नहीं तो तुझे जो भी है। तो मैंने वो जो है छुड़वाया उसको, देखा मैंने, वो मेरा बड़ा क्लोज था वो जूनियर, तो मैंने उसे छुड़वाया, तो वो चला गया। उसके बाद जो है मुझे पता नहीं था कि वो दूसरा बंदा, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, बाद में पता चला कि वो तो जो है नॉन मेडिकल था। तो ये जो है कि बड़ा इट बिकेम वेरी बिग इशू। ओके, दिस इज वन टाइम व्हेन आई वुड से the whole, all the hostel, everyone came together. They forgot all their differences and whatever होते हैं, हर उसमें पॉलिटिक्स हर जगह होती है। तो वो जो बंदा एक दिन आया हुआ था, कुछ दिन बाद ही वो बंदा आया हुआ था उस दिन बॉस से मिलने, और पता चला कि वो तो यहाँ आया हुआ है। तो जितने भी हॉस्टल वाले थे वो सब इकट्ठा हुए, उसे पकड़ा, उसे वहाँ से जो है उसकी बड़ी पिटाई करी वहाँ से, और बाहर तक गेट तक उसे लाए, उसके पीटते उसे, एक्चुअली नाउ हाइंडसाइट लिटिल एक्सट्रीम, कि उसे जो है उसके कपड़े फाड़ दिए, नेकेड, ही वाज वॉकिंग नेकेड ऑल द वे, इट वाज अ ह्यूज इशू। और वो जो बॉस थे 85 वाले बैच के जो बॉस थे, वो भी छत से कूद के भागे, क्योंकि देन दे वेंट टू गेट हिम, everyone to get him to ki it was unity ki yeah you know you rag, yeah it's okay, but don't get outsiders exactly. How did you do that? So it was a huge issue तो आज तक मैं भूलता नहीं हूँ कैसे वो बंदा, ये एक्चुअली आई थिंक everyone went a little far, उसकी बहुत मारा उसे बेचारे को, he got admitted to ICU, survived and everything, but no permanent injury or anything, but I can never forget that. बस कोई लव स्टोरी शुरू हुई वहां से? डल्लू से तो बहुत लव स्टोरी बनी है। हमारे बैच में तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ तो कोई डल्लू के यहाँ से या चाय वालों के यहाँ से शुरू नहीं हुआ,
हमारे बैच में होते थे कई लव बर्ड थी मोहित गोयल और रानू की. Okay. Both of them very good people, and they're happily married. The kids are दोनों बच्चे इधर कनाडा में हैं, लड़का और लड़की दोनों. अरे वाह, क्या बात. वेरी गुड. बढ़िया बढ़िया. चलिए बॉस, मजेदार जो है स्टोरी निकल के आ रही है. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बॉस, क्योंकि हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है हमारे एल्मा मैटर के लिए. तो मैं जानना चाहता हूं कि तब के टाइम में जब हम लोग पढ़ा करते थे और आज का जो टाइम है, जो आजकल के जो है बच्चे वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है यार, क्या चीजें हमारे कॉलेज में इम्प्रूव होनी चाहिए जिससे कि जो आजकल की जनरेशन है वो एक अच्छे क्लिनिशियन की तरह निकल के आए हमारे कॉलेज से. So I'm not sure the quality of the teaching, how the quality of teaching is there, and what the resources these kids have these days. Because compared to Canada, आप कनाडा में भी देखा होगा आपने सिस्टम क्या है, कैसा है, और जो हमारे कॉलेज में जो है चलता है, क्योंकि चेंज तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए है ना. तो आपको क्या लगता है? मैं तो मेन then there is a huge, there is so many things that can be improved. हमारा तो क्या था उस टाइम पे, तो you get into the medical college, and then to get to the medical college is about exams and ratta, and you know this, do you know this, that's about it. Practical knowledge जो है, how to apply, how to come out, how to solve a situation, we never got taught in medical school. ये नहीं कि जो है I think the अभी जो even in schools यहाँ पे जो है क्या चलता है कि it's problem based learning. Exactly. So problem based learning नहीं है अभी. हमारे टाइम पे नहीं थी बिल्कुल भी problem based learning. हमारे टाइम पे थी नॉलेज कि क्या तुम्हें आता है, तुमने जो है कितने रटे हुए हैं, तो जो है तुमने पूरी किताब रट ली, बहुत बढ़िया. तुम्हें मरीज ठीक करना आता हो ना आता हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर किताब रटी होनी चाहिए. यहाँ पे क्या है कि यू मे नॉट नो हैरिसन इनसाइड आउट, बट डू यू नो हाउ टू सेव अ पेशेंट, हाउ टू ट्रीट दिस स्पेसिफिक कंडीशन, कि क्या क्या तुम्हारे ऑप्शंस हैं, क्या क्या तुम दे सकते हो. वो यहाँ ये मैं कहूँगा कि what we should improve in our education back home would be increase the problem based learning. It's not a issue of the brain जो हमारी brain है वहाँ की, ये तो यहाँ पे कुछ नहीं है. It's unbeatable. Our brain, all the kids who get into med school in India, their brains are far superior than any brain here. It's the how to apply that brain. That's what it is about. Exactly. इसी से रिलेटेड बॉस अगला सवाल मीनाक्षी की तरफ से. सर चलिए, आप यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे कनेक्टेड हैं. उसी के थ्रू एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे बड़े लाला माइट्स को जो ऑलरेडी इन मेडिकल कॉलेज, कि क्या करो ऐसा that you came out to be a better clinician, just as you mentioned, like patient safety or like problem based, how to they can अभी भी चल तो वही रहा, you have to pass every professional and how to get in, पर 2-3 ऐसे points बताइए जिस पे वो focus करें and then they can be a better physician. So I think the again it'll be teaching, you have to take that in your own hands. When you graduate and you start your practice, there's no one who's going to teach you at that time. No one's going to hold your hand. So one option would be you make group, you make a good groups, and the same thing here. It's people make their groups and then they do a clinical scenario, and there are so many resources. अभी तो बहुत सारे resources हैं available over the internet and everything that you can go through clinical scenarios. There are rounds that you can join. Actually, the clinical rounds available हैं US में हैं. There are apps that are available to join those clinical rounds where
you solve a clinical problem based on presentation of the patient, and you do in a group setting. You know, आपस में अपना मिलो, 4-5 दोस्त और बैठ के और एक दूसरों को सपोर्ट करो, क्योंकि it's unfortunate कि मेरी जो है my own niece, she just finished her MBBS and वो बताती थी मुझे there's no teaching. आते हैं नहीं आते हैं, teaching mainly done by those demonstrators, तो जो वो assistant teacher and so forth, जो actually जो posted जो professor हैं वो तो आते नहीं है, पढ़ाते नहीं है बच्चों को. It's shameful. It's you have to do your own, you have to learn on your own. Exactly. It's heartbreaking actually. It is क्योंकि बड़ा डिफरेंस है बॉस इंडिया के जो है करिकुलम में और जो बाहर जो है हम लोग देखते हैं, है ना, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सिग्निफिकेंट डिफरेंस. चलिए बॉस, हम कुछ शब्द बोलेंगे, आपको उनसे रिलेटेड जो भी पहला वर्ड आपके दिमाग में आए बिना सोचे वो आपको बोलना है, ठीक है? सोचना बिल्कुल नहीं है बॉस, और 1 वर्ड आंसर है आपको. जैसे रैपिड फायर राउंड, आप समझिए आप कॉफी विद करण पे हैं, राइट? तो LLRM, मस्ती, कॉलेज हॉस्टल, golden period. Actually, I will call a mixed bag. Mixed bag. Okay. Now, dissection hall, Oh, scary. girls hostel, Dream. wow. गुड आंसर. तो निकलते थे इसके सामने से आते भी जाते भी, उन्होंने बीच में पानी क्यों टब बनाया था. गर्ल्स हॉस्टल अलग होना चाहिए ना, तो बॉयज हॉस्टल अगर तुम्हें जाना है कॉलेज से तो गर्ल्स हॉस्टल के सामने से ही निकलना पड़ता था, आते हुए भी और जाते हुए भी, ताकि गर्ल्स को बॉयज ना पड़े, वो इसलिए स्ट्रेटजी करी गई थी. ओके. अब या डल्लू तो अगेन रुचिका, मेरे ख्याल से मैं रुचिका इज रुचिका. गोभी के पकोड़े. ओके. बड़े फेमस थे उसके, वो गोभी पकोड़े बनाता था बस. हमें तो डल्लू के गोभी के पकोड़े से एक ही चीज याद आती है, पैथोलॉजी की एक स्लाइड हुआ करती थी. हाँ, तो उसको रिलेट किया जाता था कि अगर वो ऐसी दिख रही है तो वो स्लाइड जो है एक्टिनोमाइकोसिस की स्लाइड. अगला सवाल. इवनिंग क्लिनिक्स, रेजिडेंस टेरर. अरे रेजिडेंस टेरर, PCT, जो बॉस होते थे वो तो क्या सॉरी, PCT, पार्ट कंप्लीशन टेस्ट, PCT. अच्छा, ये तो मुझे इट्स नॉट रिंगिंग अ बेल. ये क्या था? एक पोर्शन फिनिश होता था जैसे एनाटॉमी में, यूनिट एग्जाम. यूनिट एग्जाम तो कुछ नहीं, वो तो टाइम पास. अरे बस टाइम पास. अभी सॉरी, रैपिड फायर में तो मैं आई एम गोइंग टू पॉज, तो आई हैव समथिंग टू टेल. तो हमारे लिए तो प्रोफेशनल एग्जाम ही होते थे, ये यूनिट एग्जाम वगैरह तो आते जाते रहते थे. प्रोफेशनल एग्जाम जो है तब हम लोग पढ़ाई करते थे, खड़े खड़े सोते थे अपना. आखिरी के 1 महीने में जो है 2-2 घंटे हम सोने को मिलता, 2-3 घंटे, क्योंकि पूरे साल तो पढ़ा नहीं होता था. वो रट्टा इतना लगाना होता कि टाइम ही नहीं था. उस टाइम पे जितने भी सीनियर थे याद आते थे, उनके पैर पकड़े थे कि हमें बॉस उठा देना 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद. तो यूनिट टेस्ट तो टाइम पास ही होता था हमारा. चलिए बढ़िया है, यूनिक आंसर है, PCT इज टाइम पास. आपके टाइम पे कॉलेज फेस्ट जो होता था, स्टिमुलस. स्टिमुलस during our time, I think 87 बैच के बाद it really didn't happen. फिर there was some problems, some political things going on, and we tried. Really? There was 1 year only it happened. It didn't really happen. Same thing SMCT. During that period didn't happen. But आपने कोई अटेंड किया है बॉस? आपके टाइम में कभी हुआ है? No, I don't remember SMCT or Okay. students. Okay.
Blast magazine was there? Blast magazine? ब्लास्ट मैगजीन या वो जो हैंड रिटन वाली जो हुआ करती थी, मेरे ख्याल से हमारे बैच में मनोज श्रीवास्तव था। मनोज बॉस, हाँ। हाँ, हमारे बैच में उस टाइम पे तुम्हारी तो फैंटास्टिक, ये तो फ्यूचरिस्टिक है, वो तो हमारे टाइम में थी। इट वाज ओल्ड एंड एंशिएंट। कभी एनकाउंटर डाले बॉस? हाँ, किसके साथ चल रहा है चक्कर। Oh my. जितने भी जूसी गॉसिप्स होते थे ना, वो तो बड़ा इंतजार होता था। वो जो है वो लिखी जाती थी, फिर फोटोकॉपी होती थी, और फिर उसे जो है बांटा जाता था। इट वाज यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू इट कि हाँ क्या मिलेगा उसे पढ़ने में, क्या नई ताजी है। Exactly. What was the first word come to in your mind when you think about Blast magazine? Gossip. Okay. So आपका इंटरव्यू भी उसी की ई फॉर्म में छपने वाला है, right? I was trying to say. Last one, Okay. Meenakshi. Yeah, Lala Mites. Undivided. Okay. Doesn't matter which part of the world you are in. Doesn't matter what you practice. Doesn't matter where you are in your life. They're all one in it together. Once LLMite will always be an LLMite. क्या बात है, यूनिक आंसर बॉस। चलिए बॉस, नेक्स्ट सेट जो है मैं ले लेता हूँ। BLT ऑफ योर टाइम। यार हमारे टाइम में हुआ करती थी प्रीति चंद्रा। चलिए बस अगला सवाल। फेवरेट प्लेस टू हैंग आउट इन कॉलेज? रुचिका। ओके। विटी बैचमेट? तरुण। अनबीटेबल। वो तो अगर यू नो तुम्हारा दिमाग खराब जो है, यू डिप्रेस्ड एंड वो तरुण के पास जाओ, तुम्हारी उतारेगा वो, और तुम वहां से निकलोगे खुश होके। ओके। अच्छा, एंग्री मैन ऑफ योर बैच? संदीप सहगल। ओके। पढ़ाकू बैचमेट? संदीप गोयल। सबके नाम बोलने पड़ गए। और ये तो कोई बात, ये तो बढ़िया है, ये तो बॉस। देखो संदीप सहगल, तरुण, ये सब हमारे ग्रुप। सेवन मस्केटियर्स। वी मैसेस यूज्ड टू से वी मैसेस कैट्स। हम 7 बंदे थे और 6 लड़कियां थी हमारे ग्रुप में। ब्लास्ट, वी यूज्ड टू हैव ब्लास्ट। सहगल के यहाँ जाते थे हम ऑलमोस्ट एवरी अदर वीकेंड। इस वन ऑफ द रीजन मैं घर नहीं जाता था, क्योंकि उसके यहाँ जाके बहुत डांस करते थे, बहुत मस्ती मारते थे। ओके। अच्छा बस, पॉपुलर बैचमेट अमंग गर्ल्स? अरे यार, तो ये लड़कियों से पूछो ना, मेरे से क्यों पूछते हो? अच्छा, आप अपना नाम ले दो। मुझे कैसे पता होगा? मैं ही पॉपुलर हूँ। बिल्कुल बस। पॉपुलर टीचर ऑफ योर टाइम? सिंधु मैडम। Okay. अदर देन सिंधु मैडम, रमेश बाबू और वाजपेयी सर। बिल्कुल। फेवरेट पास टाइम इन कॉलेज? रुचिका। ओके। क्या बोल रहे हैं? मुझे लग रहा है किसी लड़की का नाम है। फेवरेट पास टाइम? रुचिका। फेवरेट अल्कोहलिक ड्रिंक? अभी की कॉलेज में? कभी की बॉस, कभी की भी। कॉलेज में तो चाय होती थी। ओके। नॉन अल्कोहलिक मैं पीता नहीं था कॉलेज में। So now I have scotch here and there, and my favorite was Macallan. Okay, good. Popular Lalamite of your time? Popular in senior कैसे भी बॉस, मल्टी टैलेंटेड, सीनियर जूनियर, आपके बैच में जो भी आपको नाम आपके अलावा याद आता है। Point taken. एक धीरज बॉस हुआ करते थे। धीरज बंसल बॉस। धीरज बंसल 85। धीरज बंसल बॉस से मेरा बड़ा लगाव था, क्योंकि उनकी मदर जो थी वो प्रिंसिपल थे जिस स्कूल में मैं पढ़ता था। हाँ। और तो आते थे इसको हमारे स्कूल फंक्शन में, और वो गाना गाते थे उस टाइम पे। हाँ, अब भी गाते हैं। मूवी? शोले। फेवरेट मूवी डायलॉग?
गब्बर कितने याद में थे। ओके, फेवरेट सॉन्ग? पुकारता चला हूं मैं। हो जाए 2 लाइन। या तो बहुत टाइम हो गया, मुझे 30 साल हो गए। कोई बात नहीं बॉस, हमने बहुत तारीफ सुनी है आपके गाने की। सब झूठ है। अच्छा, कोशिश करता हूँ। ओके। पुकारता चला हूं मैं, गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूं मैं। क्या बात है बॉस, सुर में बड़ी अच्छी पकड़ है आपकी। अबे कहाँ भाई, अब तो मैं बाथरूम में भी नहीं गाता। नहीं, बहुत बहुत अच्छा गाते हैं बॉस। आपका जो है गाना हम एक बढ़िया सा आप भेजेंगे गाना, तो हम उसको ई ब्लास्ट के फन फ्राइडे सेक्शन में पब्लिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्ड करके। Sir, have you ever been involved in Blast magazine? नहीं, no, I was never been involved. ओके। Other than distributing those photocopies. बॉस वो तो बहुत इंपॉर्टेंट काम था डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना, हाँ। क्योंकि वो तो सारी कॉपियां बिकवानी होती थी। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने रुपए की थी आपके टाइम में? तरुण was the master in that. हम तो जो है साइडी थे तरुण के। तरुण was the master. कितने बॉस तब रेट क्या था उसका, कितने में बिकती थी? हमारे टाइम में 5 रुपए था ना मीनाक्षी? हाँ, 2 रुपए 5 रुपए कुछ था। 2 रुपए एनकाउंटर्स का था। ओके, चलिए। अच्छा बॉस, चलिए अब अगले सवाल को ले लेते हैं, क्योंकि ये सवाल जो है हमारे ब्लास्ट के ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने ब्लास्ट को कन्वर्ट किया ई ब्लास्ट में। और ये फोरम जो है बॉस, हम लोगों का विजन है कि हम जो हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथनिंग है उसको जो है नेटवर्किंग को इम्प्रूव करें, बॉन्डिंग को बढ़ाएं, ताकि हम सब लोग कनेक्ट हो सके, क्योंकि हमारे लालामाइट जो है अक्रॉस द ग्लोब हर जगह फैले हुए हैं, हर जगह, और बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं। तो बॉस ये एक हमारा जो है प्रयास है, क्योंकि ओएसए जो है इस बार हमारा सिल्वर जुबली बैच है, तो सिल्वर जुबली बैच को एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव किया जाए। तो हम लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी ली इस साल, और हमारा कोशिश है कि ये ई ब्लास्ट जो है ये कंटिन्यूस चलती रहे, नेक्स्ट ईयर ये चलती रहे, और जूनियर्स इसको जो है चलाएं, और हम लोग भी इसको सपोर्ट करेंगे। तो बॉस, इस फोरम के थ्रू बेसिकली हम लोग जो आप बात कर रहे थे कि क्लिनिकल जैसे ना, कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या चीजें की, तो जो आजकल की जनरेशन है उनको कैसे हम सपोर्ट कर पाए, गाइडेंस दे पाए या मेंटरशिप कर पाए, तो ये फोरम बेसिकली उसी के लिए यूज होगा। और बाकी किसी को कोई भी हेल्प चाहिए उसके लिए ये फोरम यूज होगा। तो बॉस, हम लोगों की वेबसाइट भी डेवलप हो चुकी है, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है एक विजन है सारे लालामाइट्स को कनेक्ट करने का। तो मैं चाहूंगा इस ई ब्लास्ट से जुड़ने के लिए आप सभी लालामाइट से अपील करें, और स्पेशली अपने बैच से भी बॉस, 89 बैच से भी। तो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने शुरू में कहा था कि आप लोगों ने, आपका जो बैच है, they have started this unique thing, and I would say all the LRMites should be grateful कि आप लोगों ने ये शुरू किया है, and I will appeal to everyone to join it. We are a big family, you know, and the family, we all help each other, we all look after each other. So everyone, senior, junior, our batch, we should all join hands together, come together, and look after everyone who's in need, and everyone who comes out of LLRM, and stay together. बिल्कुल बॉस। अब हमारा जो है इंटरव्यू अंतिम पड़ाव पे है, तो मीनाक्षी, लास्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम सब के लिए। सर, उससे पहले आप बताइए, आप आ रहे हैं ना दिसंबर की छुट्टियों में इंडिया? यार, I will be very honest, मैं जो है I am 99.9% श्योर कि मैं आऊंगा।
to request your batchmates in India and in abroad, उनको भी इनवाइट कीजिए। आप जिससे मिलना चाहते हैं फ्रेंड्स को बोलिए आप आइए इस बार, और प्लीज हमारे 2023 USA को एक बड़े लेवल पे बनाइए। So nice, great, and I wish you guys all the best, and you know, I don't know Nitin and Meenakshi की आपके बैच में कितने लोग काम कर रहे हैं to make this event a successful one. Every batch has a limited people who they do all the work. So never feel कि भाई you guys are doing all the work and other people not pulling their weight. When you have that feeling, remember that there is only one leader. So okay, some people are leaders and some are followers. So be the leader that you are, and pull through. Best wishes for all your efforts, and I'm sure the success will be yours. You guys it's an amazing job. I'm just blown away by your efforts. It's great. मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे जूनियर, मेरे बैच के, मेरे सीनियर के तो पैर पकड़ के कहना पड़ेगा कि अपना जो है आप लोग सब आओ 25 दिसंबर 2023 में OSA को सक्सेसफुल बनाओ, द बेस्ट इवेंट ऑफ द सेंचुरी बनाओ, और seniors bless us, and my batchmate grace us, and the juniors we bless you. You know, make it a success. क्या बात है, बस जबरदस्त इमोशनल अपील। तो बॉस हमारा जो है टाइम भी जो है खत्म हो रहा है, तो मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। तो पहले तो आपका बॉस बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है हमारे फोरम पे आए, ई ब्लास्ट के फोरम पे, और आपने अपना टाइम दिया इस समय। तो बॉस पूरी ई ब्लास्ट टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे 98 बैच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस फोरम पे आने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू मीनाक्षी फॉर ज्वाइनिंग अगेन। Thank you Meenakshi, thank you Nitin. Thank